लेकिन ये 1 मिनट का नहीं है, हाँ, थोड़ा नहीं। इससे थोड़ा ज्यादा होगा। आउट ऑफ लॉटरी हैं आप, यस। तो यू हैव बीन गिवन प्रायोरिटी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must yes, complete. I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर बांग्लादेश से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सैकिया जी, आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। दिलीप सैकिया जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे I want to raise a very important issue regarding दिलीप सैकिया आगे बात, आपकी बात आ गई। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Chairman sir. Thank you. I want to raise a very important issue regarding atrocities on Hindus in Bangladesh, sir. Sir, we are aware that the last few months we are witnessing that world is witnessing the inhuman behavior with the Hindus residing in Bangladesh by some anti-human and anti-Sanatanist forces. Hindus were killed, Hindu mosque mandirs were also burned down, Hindu business establishments were also burned down, right to worship were also snatched away, ISKCON Swami were also forced to jail without hearing his plea. ये बात आ गई है, श्रीमती हेमा मालिनी ने ये बात कह दिया है, आप एसोसिएट कर लें। States were badly affected पूरी बात कह after दिया। the formation of you please go to my statement, sir. After the formation of Bangladesh in 1971, lakhs of Bangladeshi Muslims infiltrated to Assam. They are now become a deciding factor in both democratic pattern and in political and electoral system, sir. Now Chairman, kindly sir, it is associate also a yourself matter and put your of demands. internal security of the country. So I request the Indian Parliament to take a resolution, send a message to Bangladesh government to total stop of atrocities of Hindus in Bangladesh. Thank you, sir. Thank you. Sri Captain B. Fernandez. Captain B. Fernandez.
Thank you, एक मिनट लें तो काफी लोग आ जाएंगे, अदरवाइज तो Thank you, sir, for giving an opportunity. Today is Indian Navy Day. As a former Navy officer, it gives me immense pride to wish the officers, the sailors, the defense civilian personnel and their families, not forgetting the veterans and those who have lost their lives while serving the country. The theme of Indian Navy this year is strength and power through innovation and indigenization. Over the years, the Indian Navy has improvised, improved, and played a critical role in the country's defense setup. Indian Navy Day is an honor for the success of Operation Trident that was audaciously launched. I repeat, audaciously launched on the intervening night of 3rd and 4th December that crippled the Karachi port and turned the favor in India during the war in 1971. Today I Kindly can put say your with demand, utmost sir. pride that Navy's contribution in maintaining peace in the Indian Ocean, ensuring security of critical We must trade appreciate routes your and fostering sincerity. We are maritime all aware about cooperation the is importance of tremendous. it. Kindly I put your once again demand. wish the personnel Thank you. on this important day. Thank you, sir. श्री अनिल फिरोजिया जी, whether is present here. बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरा विषय भी यही था कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। मैं भारत सरकार से माननीय आप प्रधानमंत्री श्रीमती हेमा जी से- मालिनी जी के साथ एसोसिएट कर लीजिए, उन्होंने विस्तार से काफी बातें कह दी। पर ये बड़ा गंभीर विषय है, विस्तार से मैं नहीं बोलने वाला। मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप गाड़ी में ला लो भले। एक मिनट मैंने इनका नाम लिया, मैंने अनिल आपसे- फिरोजिया जी का नाम लिया। आप बैठिए, फिर आपको नहीं देंगे। आप बैठिए, जावेद साहब बैठिए, आप बैठ जाइए, कृपया आप बैठ जाएं। आप गौरव गोगोई जी, आप उपनेता हैं, बैठ जाएं, बैठ जाइए। अनिल फिरोजिया जी बैठ जाइए। मैं तो अनिल फिरोजिया जी। माननीय सभापति जी, वहाँ पे वकीलों के साथ भी मारपीट हुई, वो भी अस्पताल में घायल हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ हस्तक्षेप करके और इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनको वहाँ से रिलीज धन्यवाद, कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजीत सिंह औजला, श्री गुरजीत सिंह औजला, अरे आप मौका दे रहा हूँ, आपकी पार्टी के हैं श्री गुरजीत सिंह औजला। लालजी वर्मा, तो आप कोऑपरेट करें हम सबको दें। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया बोलने का। पंजाब में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय लोगों का ध्यान में है, जो संघर्ष किया जा रहा है। पानियों में बहुत बुरा हालात है। जो गंदे नाले, बुड्ढा नाला लुधियाना में, अमृतसर में तुंगडाब ड्रेन, दोनों का पानी में जो कारपोरेशन का पानी, डेयरी का पानी और इंडस्ट्री का पानी, दोनों में तीनों पानी मिलके इतना गंदला हो चुका है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब जो बोर फाजिल का एरिया जितना भी है आगे मोगा एरिया, वो सारा कैंसर से पीड़ित हो रहा है। सर एक मिनट, बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, लोग मर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, सरकार कहती है स्टेट सब्जेक्ट है। सर प्लीज सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, वो सारे रिश्वत लेके बैठ जाते हैं। ना ड्रेनेज विभाग को कर रहे हैं, ना कारपोरेशन कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है। सर लोग सड़कों पे उतरे हैं, लोग मर रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, सरकार एक कमेटी बनाए, दोनों जगह विजिट करे, तुंगडाब ड्रेन और बुड्ढा नाला, और लोगों की हालत क्या है, रिपोर्ट करे, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, लोगों के जान माल की राखी करे। सरकार की जिम्मेदारी है सर।